Hello, students. Very good morning. How are you all? Are you safe? Huh? You must be. Huh? I hope that you must be safe. You must be following social distancing and keeping yourself and your family members and also society members safe. Good morning. Hmm? Students, from today we are going to take up our syllabus towards the poetry section in literature, and the very first poem that I am taking today is Dust of Snow by Robert Frost. As we all know that it's very small poem, am I right? Yes, it's very small poem, but it has the deeper meaning. The poem is very small, but it has a deeper meaning, a lot of meaning, a lot of morals that we are to get from the poem. Before talking about the poem, let us talk about the poet Robert Frost. You must have read a lot about Robert Frost in your earlier classes. Even his poem "The Road Not Taken" was in your syllabus in ninth class also. So here again we are going to take one poem by Robert Frost, that is Dust of Snow, and not one poem. His two poems are in our syllabus: Dust of Snow as well as the Ice, Fire and Ice. Both these poems are composed by Robert Frost. So, before beginning the poem, let us talk about the poet. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh. By 1920s, Frost was the most celebrated poet in America. His poetical works, A Boy's Will, North of Boston, that was A Boy's Will was published in 1913, North of Boston was published in 1914, New Hampshire was published in 1923, A Further Range was published in 1936, A Steeple Bush was published in 1947, and In the Clearing was published in 1962. This all has increased his name and honor a lot. The poem that is in our syllabus, that is Dust of Snow, that poem was published in New Hampshire in 1923. And this collection that has been made in the New Hampshire gave him the Pulitzer Prize also. So, this. One thing more I would like to tell you. Though he was born in America and later on he gained his name and fame also in America, but in the beginning of his life he could not gain that name and fame from America. He had to move to America, England, and there he published his first book, and that book has brought a lot of name and fame for him.
After gaining a huge name and fame from England, he came back to America to be sure whether he is getting the same name and fame in America also or not. So when he came back to America, then he brought. In 1915, he came back to the USA, I mean America. In 1912, he had gone to England. In 1915, he came back to America. And slowly and steadily, he gained fame as the poet. His father got worldwide fame for its simplicity and depth of thought and modern approach. And his father passed away. He passed away in 1963. He passed away in 1963. So this is something about the poet. Now let us start the poem that is in our hand, Dust of Snow. Dust of Snow. स्नो की डस्ट. फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं. कुछ समझ में नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में क्या करें. और फिर जो हमारा बैड मूड है या हमारा डिप्रेशन है या हम सैड हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम दुखी क्यों हैं, हमारा मूड क्यों खराब है. हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा मूड खराब क्यों है. आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है? अगर प्रॉब्लम मालूम चल जाए तब तो प्रॉब्लम या समस्या का सॉल्यूशन निकल आएगा ना. सॉल्यूशन नहीं पता होता, रीजन नहीं पता है तो सॉल्यूशन कहाँ से पता होगा. और फिर हमारी लाइफ के सिंपल इवेंट्स, हमारी लाइफ में सिंपल इंसिडेंट्स उस बैड मूड को ठीक कर देते हैं. जैसे बिना कारण के, जिसे कारण समझ में नहीं आ रहा था और हम दुखी थे, वैसे ही बिना कारण के हमारा मूड ठीक भी हो जाता है. और कभी कभार तो हमारी लाइफ हमारा वो जो मूड जो खराब था वो ऐसे पॉइंट से ठीक हो जाता है, वो लोग ठीक कर जाते हैं जिनसे ठीक होने का कोई आभास नहीं होता. I mean, आसार नहीं होता. हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये आदमी हमारे बैड मूड को ठीक कर देगा. आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे. कभी कभार हम ऐसे लोगों से हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, जिनसे कभी होप नहीं किया है कि ये लोग भी हमें जो है नॉर्मल मूड में ला सकते हैं. वो लोग हमारे गड़बड़ मूड को ख़त्म कर देते हैं. हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं. क्या हुआ कि एक आदमी है, वो बहुत ही परेशान है. उसने अभी क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो एकदम परेशान है. और परेशान किस लिए है? परेशान इसलिए है कि उसका मैथ्स का पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ है.
वो टेस्ट है कि अगर थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ भी है वो बहुत ही माइनर के डिफरेंस से उसका पेपर गड़बड़ है। ऐसे ही टेंशन में, ऐसे ही डिप्रेशन में, ऐसे ही सैड होते होते एक दिन वो आ जाता है मैन, जबकि जो है रिजल्ट आया था और उसका एक वो मित्र जिससे वो कभी भी बात नहीं करता, जिससे वो कभी भी ज़्यादा संपर्क में नहीं रहता, वो उसको कॉल करता है कि तुम पास हो गए। तो क्या हुआ, उस डिप्रेशन से उसको फ्रीडम मिल गई। ऐसे ही कुछ सिंपल मैटर से जो है लेकर के ये आपकी पोएम जो है बनाई गई है। लेटेस्ट ट्राई। So Robert Frost, a well-known American poet of nature, in this poem presents a moment that seems simple but has a larger significance. अच्छा, एक बात और जो केयर करने वाले, हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो है नेचर के पोइट्स हैं, नेचर को जो है काफ़ी अच्छे ढंग से डील करते हैं, लेकिन इनका जो नेचर का डिपिक्शन है, नेचर को जो है का पोर्ट्रे है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, वो नेचर की ब्यूटी को एडमायर करते हैं। ही सिंग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। यहाँ हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा नहीं है। ये जो पोएम है जो आपके हमारे सिलेबस में है, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो प्रेजेंट करते हैं एक ऐसा मोमेंट जो कि होता तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मोमेंट था, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। लेकिन उस सिंपल मोमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत बड़ा था। इट इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोएम। आपको पता है ये पोएम सिंबोलिज्म से भरी हुई पोएम है। यस, सिंबॉलिक पोएम, प्रतीकात्मक कविता है। वन डे क्या हुआ कि पोएट जो था, ऐसे मैंने अभी अभी आपको पहले बताया था, उसी प्रकार से पोएट भी बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में था। ही वॉज हाईली इन सैड मूड, ही वॉज डिप्रेस्ड। और फिर एक पेड़ के नीचे वो आसपास पहुंचता है और एक प्लेजेंट इवेंट होती है, प्लेजेंट इंसिडेंस होता है वहाँ पे। और उस प्लेजेंट इवेंट ने क्या किया, पोएट के मूड को चेंज कर दिया। इट शेप्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। और चूंकि उसका जो है मूड ठीक हो गया, इसलिए उसका आगे का जो दिन था वो ठीक हो गया। तो ये है। चलिए हम लोग पोएम की बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू start and read and understand the poem. Yes, the first stanza. It is very short poem. There are just 2 stanzas in this poem. I am going to take the first stanza. Yes, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. These 4 lines stanza. So this poem is set in a scene where the poet is in bad mood and is walking by a tree. समझने का प्रयास करिए। ये जो पोएम है वो एक ऐसे बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में ये है कि जो पोएट है वो बहुत ही बैड मूड में है और एक पेड़ के नीचे से जा रहा है। और वो पेड़ क्या है, हेमलक ट्री। हेमलक ट्री क्या होता है, हेमलक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है। और अगर ट्री पॉइजनस है तो हम वहाँ से किसी पॉजिटिविटी की को एक्सपेक्ट
क्या कर सकते हैं? नॉर्मल लाइफ में तो हम नहीं करते। इन आवर नॉर्मल लाइफ वी डोंट एक्सपेक्ट पॉजिटिव actions from the negative objects. Am I right? तो पोएट कहाँ से गुजरता है? पोएट passes through a hemlock tree. एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है, और जब वो वहां से गुजर रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो वहां से गुजर रहा है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। एक क्रो वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाता है उस हेमलॉक ट्री पे, और चूंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है जिस एरिया में रहता है वो कोल्ड रीजन है, वहाँ पर डस्ट आई मीन स्नो डस्ट है पेड़ पे, और पेड़ पे क्रो पता नहीं कहाँ से। अच्छा, क्रो को भी अगर देखा जाए तो क्रो भी तो पॉजिटिविटी का सिंबल नहीं है ना। Even the crow is not a symbol of positivity. वो क्रो जो है आता है और वो पेड़ पे बैठता है, और उसके बैठने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर कुछ स्नो के डस्ट, आई मीन पोएट के ऊपर कुछ स्नो के डस्ट गिर पड़ता है। वो पेड़ को हिला देता है क्रो और हेमलॉक ट्री को, और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो डस्ट है वो स्नो डस्ट पोएट के ऊपर गिरता है। As he passes by, a crow happens to make to fall some of dust on him. Whether it falls on his head or shoulder is unknown. अब देखिए, वो उसके सिर पे गिरता है, आई मीन जो आइस है, जो स्नो है, वो उसके सिर पे गिरता है या उसके शोल्डर पे गिरता है, ये चीज़ अननोन है। as it is unknown, as there is no specific mention in the poem, क्योंकि पोएम में ऐसी कुछ भी चीज मेंशन नहीं की गई है। Also the readers are left in about the bird's specific action, whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branch, or taking off, ये कुछ क्लियर नहीं है भाई। क्रो वहाँ पे उड़ता हुआ आता है, वो बैठता है, या पहले से वहाँ बैठा था, कांप रहा है ठंड के मारे, उसके ठंड के मारे कांपने के कारण वो आई मीन स्नोफॉल करती है, या फिर वहाँ बैठा है क्रो उस हेमलॉक ट्री पे और अपने आप को रीएडजस्ट करता है, इस कारण से उसका आई मीन स्नोफॉल करता है। ये कुछ भी इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पोएम। इट हैपेंड टू सेंड सम आर्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द फादर। बस एक बार बताया गया कि उसके किसी एक्शन से पोएट के ऊपर कुछ स्नो गिरता है। हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे नेचर के दो एजेंट्स दिखाए गए। कौन कौन से? एक तो हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो। हेमलॉक ट्री is a poisonous tree, and crow is also not a good symbol. Both are signifiers of sadness and gloom. Sadness and gloom, ये दोनों sadness and gloom के ही को ही सिग्निफाई करते हैं। और यहाँ पे जो आपको माइंड करना है कि जो पोएट है उसके ऊपर भी उसका मूड भी क्या है, उसका मूड भी सैड है। ही इज ऑल्सो सैड। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुली इट हैज वेरी रिटन। ओपनिंग सीन में आप लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
and saved some part of a day I had rued. So, for reasons unknown, the author was having a terrible day. As I told you, ऐसा हमने भी पहले संज्ञा में देखा, इस हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस कारण से पोएट दुखी है ये पता नहीं है, बस एक बात है कि जो पोएट का डे है वो टेरिबल डे हो गया है. बट द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज हेड, मैंने बताया कि वो हेमलक ट्री के नीचे से गुजरता है. हेमलक ट्री के ऊपर एक क्रो, अब पता नहीं कहीं से उड़ता हुआ आ गया, वो वहाँ पहले से बैठा हुआ था, वो ठंड के मारे कांप रहा था, उसके कांपने से या फिर उसने अपने आप को एडजस्ट किया, किस कारण से हुआ ये नहीं पता. बस ये है कि उसके कारण हेमलक ट्री की पत्तियां हिली और उससे कुछ डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिरा. किसके ऊपर गिरा? पोएट के ऊपर गिरा. अब पोएट के सिर पे गिरा या शोल्डर पे गिरा ये कुछ क्लियर नहीं है, बस पोएट के ऊपर गिरा. और इससे क्या होता है? इससे हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. यस, वेरी ब्यूटिफुल. बट दिस फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली. क्या किया? उसके मूड को इंस्टेंटली चेंज कर दिया, लिफ्ट कर दिया, उसका सैडनेस खत्म हो गया. पोएट का जो सैडनेस था वो खत्म हो गया. और जैसा कि आपने देखा कि पोएट अभी तक पूरा का पूरा दिन उसका बहुत ही खराब गया था, लेकिन आगे का जो दिन था वो क्या हुआ? उसका आगे का जो दिन था उसको सेव कर लिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. दिन का वो पूरे दिन में से कुछ हिस्सा तो उसने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया था, रू कर दिया था, रिग्रेट का था. लेकिन अभी क्या हुआ? इस हेमलक ट्री के कारण और इस क्रो के कारण क्या हुआ? उसके उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया गया, क्योंकि उसका मूड सही हो गया, बिकॉज ही बिकेम हैप्पी. अगर हम जनरल सेंस में बात करें, जैसा हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, जनरल सेंस में बात करें तो हेमलक ट्री और क्रो बोथ आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. हम इन दोनों को नेगेटिव रेफरेंस में ही देखते हैं. बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू. इस तरीके से दिखाया कि जो इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं वो भी हमारी लाइफ में जॉय या हैप्पीनेस ला सकते हैं. यस, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनऑस्पिशियस चीज़ हमारी लाइफ में, हमारे रास्ते में दिखाई पड़ रहा है, हमारे सामने आ रहा है तो वो केवल जो है नेगेटिविटी ही लाएगा. नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा यहाँ आपने देखा कि जो हेमलक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है और क्रो जो जिसको हम सदैव गलत चीज़ों से नेगेटिव रेफरेंस में ही इसको लेते हैं, उससे हमें क्या मिला? जॉय मिला, हैप्पीनेस मिला. वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. बस बिना कि सोचे समझे, बिना किसी आइडिया के ही हमें चीज़ों के बारे में निगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं बनानी चाहिए. कोई भी आइडिया बनाने के पहले हमें उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे नेचर चूजेस टू ब्लेस अस. यस, क्योंकि प्रकृति की ये सब चीजें क्या हैं? दीज ऑल थिंग्स आर एलिमेंट्स ऑफ नेचर. चाहे हेमलक ट्री हो या फिर क्रो हो या फिर स्नो, सब के सब क्या है? दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर. ये नेचर के एलिमेंट हैं. हमें रेडी रहना चाहिए. क्या करने के लिए? हमें रेडी रहना चाहिए नेचर के ब्लेस को एक्सेप्ट करने के लिए. जिस तरीके से भी नेचर हमको
ब्लेस करना चाहे, जिस तरीके से भी नेचर हमें अपने माध्यम से खुशी देना चाहे, हमें खुशियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए. So in this way we have seen it's a very beautiful poem composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगर हम देखें तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, एक स्मॉल पोएम है जिसको कि फेमस ऐसा मैंने बताया अभी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा. सेटिंग की बात करें तो ये पोएम की सेटिंग कहाँ की है? विंट्री डे की है. विंटर का सीज़न है तभी तो स्नो है, विंट्री डे का है. पहले स्टेंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया एक सिंपल नेचुरल हैपनिंग कि स्नो जो है बहुत ही ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, स्नोवी फ्लेक्स है जो कि जो है ट्रीज़ के टॉप्स को कवर किए हुए हैं. पोएट दुखी है, बहुत ही परेशान है, और ऐसी कंडीशन में वो एक हेमलक ट्री के नीचे खड़ा है या हेमलक ट्री के नीचे से गुजरता है, वहाँ से पास होता है. द मूवमेंट एंड लाइटिंग ऑफ अ क्रो, और फिर उसी में कहीं से शायद किसी भी एंगल से एक क्रो आ जाता है, उस हेमलक ट्री के ऊपर आकर के वो पर्च करता है या फिर पहले से वहाँ रहता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है. जो कुछ हुआ हो, क्या होता है? स्नो जो कि उस हेमलक ट्री के ऊपर है, उसका कुछ हिस्सा उसके ऊपर गिरता है और उसके गिरने से उसका मूड ठीक हो जाता है. पोएट का मूड, पोएट का टेम्परामेंट अच्छा हो जाता है. क्रो हम सभी जानते हैं, क्रो इज सिंबल ऑफ इल वुमेन. नहीं, क्रो क्या है? अपशगुन मानते हैं उसको, इल वुमेन का सिंबल है. एंड द हेमलक ट्री, उसका तो संबंध ही इनऑस्पिशियस चीज़ों से है, पॉजिटिविटी से हो ही सकता क्योंकि उसको पॉइजनस ट्री मानते हैं. ये दोनों, एक इल ओमेन और दूसरा इनऑस्पिशियस, दोनों मिल करके क्या किए? पोएट की लाइफ में पॉजिटिविटी भर दिए, पोएट के लिए सकारात्मकता ला दिए. आपने सेकेंड स्टेंजा में देखा कि किस प्रकार से जो स्नो के डस्ट थे वो जब गिरे सीन में तो लीव अ ट्रिमेंडस एफर्ट ऑन द mental state and mood of the poet. So for the day has been quite gloomy and wastage for him, but this ordinary natural happening suddenly brings the desired change in his mood. Am I right? देखा आपने कि सुबह से लेकर के अब तक जब वो घटना हुई तब तक उसका दिन बहुत ही खराब था, लेकिन इस सिंपल सी इवेंट ने उसके दिन को ठीक कर दिया, एकदम उसको हैप्पी बना दिया. इट ग्लैडन्स हिज हार्ट. ही रियलाइजेस दैट द फॉलिंग ऑफ snowflakes on him has saved the day. Now he has no regret as the whole of the day has not gone waste. So कोई पछतावा नहीं है क्योंकि पूरा दिन खराब नहीं हुआ था, दिन का कुछ हिस्सा ही खराब हुआ रहता है, बाकी अभी हिस्सा बचा रहता है, तो वो दुखी नहीं है. The moments of the snowfall and their effect have saved the day. They have brought a change in his mood and gladdened and uplifted his spirits. ठीक है, तो इस घटना ने क्या किया? उसके मूड को चेंज कर दिया, उसको खुश कर दिया और उसकी स्पिरिट को अपलिफ्ट कर दिया. तो आप देख सकते हैं इसमें एलिटरेशंस खूब यूज हुए हैं, इन्वर्जन का यूज़ है, एसोनेंस का यूज़ है, इंजैम्पमेंट का यूज़ है, सिंबल्स तो खूब यूज़ हुए हैं. ठीक है, इमेजरी भी है, आयरनी भी है. आप सभी लोग इस पोएम को अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित उनको अपनी कॉपी में लिखिए. नोट्स में आप लोगों को
इंट्रोडक्शन, थीम, मैसेज, लिटरेरी डिवाइस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। आप इन सभी चीज़ों को करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।